ठीक है। ऑडिबल है ना सबको? हेलो। ठीक है, तो आज अपने को शुरू करना मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले एनएफएसए एक्ट 2013 इम्पोर्टेंट है काफी। तो कोई शुरू करेगा इसका रीडिंग? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ो आप। NFSA 2013. Recently, the Niti Aayog, in its recent discussion paper, has proposed certain reforms in the act. Objectives है a legal right to persons belonging to eligible households to receive food grains at subsidized price for central issue price under the targeted PDS. Eligibility है under Under the Act, eligible households comprises two categories. पहला है priority households entitled to 5 kg of food grains per person per month. Families covered by Antyodaya Anna Yojana, poorest of poor, entitled to 35 kg per month. तो दो प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड और दूसरा अंत्योदय के अंडर। पहले वाले में प्रायोरिटी में 5 kg पर पर्सन पर मंथ है एंटाइटलमेंट, और दूसरे में अंत्योदय वाले में 35 kg पर मंथ है। Salient features: the present CIPs central issue prices rice at ₹3 per kg, wheat ₹2 per kg and coarse grain ₹1 per kg। तो राइस के लिए 3 है, वीट के लिए ₹2 और कोर्स ग्रेन के लिए ज्वार बाजरा ये सब 1। वही आता है ना कोर्स ग्रेन में? करेक्ट। Coverage है the NFSA covered 67% of the country's population, including 75% of the rural and 50% of urban population. तो overall 81.35 crore persons cover करता है। State-wise coverage under NFSA was determined by the erstwhile Planning Commission, now Niti Aayog, by using the NSS National Sample Survey है ना ये, Household Consumption सर्वे डेटा फॉर 2011-12। तो बेस ईयर 11-12 लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल सैंपल सर्वे में रिकॉर्ड है उनको। लाइफ साइकिल अप्रोच: प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स and children in the age group of 6 months to 14 years are entitled to receive nutritious meal free of cost through a widespread network of integrated child development services ICDS centers called Anganwadi centers, and also through schools under midday meal scheme. Higher nutritional norms have been prescribed for malnourished children up to 6 years of age. Maternity benefits हैं pregnant women and lactating mothers are further entitled to receive cash maternity benefit of not less than 6,000 to partly compensate for the wage loss during the period of pregnancy and also to supplement nutrition. Food security allowance for non-supply of the entitled quantities of food grains. This provision is governed through the Food Security Allowance Rules 2015. Joint responsibility of the center and state UT government. Center: allocation of required food grains to states UTs, transportation of food grains up to designated depots in each state UT, and providing central assistance to states for delivery of food grains from designated FCI godowns to doorsteps of FPS, ये fair price shops. States and UTs का responsibility है effective implementation of the act, which inter alia includes identification of eligible households, issuing ration cards to them, distribution of food grains entitlements to eligible households through fair price shops,
issuance of licenses to FPS dealers and their monitoring, setting up effective grievance redressal mechanism, necessary strengthening of TPDS. एक बार हाँ ठीक है, तो कवरेज है एनएफएसए के अंदर 67% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें 75% रूरल आते हैं और 50% अर्बन पॉपुलेशन आते हैं। ओवरऑल 81.35 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं इसके अंडर। स्टेट वाइज कवरेज है वो एनएसएसए के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है, बेस ईयर जिसका 11-12 लिया गया है, उसके अंडर जितने लोग आते हैं वो। और फिर लाइफ साइकिल अप्रोच, ये है किनको किनको ये इम्पैक्ट करेगा। प्रेग्नेंट वेमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है और चिल्ड्रन 6 मंथ टू 14 ईयर्स को कवर करता है। इनको न्यूट्रिशियस मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंडर, वही आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है, और मिड डे मील भी कवर होता है एनएफएसए। हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के लिए और मैलनरिश चिल्ड्रन 6 up to 6 years of age। इसके अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यू टू प्रेगनेंसी वेज लॉसेस। तो इसके अंडर है 6,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, मतलब हाँ इसमें 6,000 शायद वही है, जननी सुरक्षा योजना का भी कुछ कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है ना, 1,000 रुपए शायद या 5, तो इसको इंक्लूड कर तभी उन्होंने लिखा है 6,000 नॉट मोर देन में कुछ हाँ। होता है पहले से वो जो 5,000 टाइप जननी सुरक्षा से है ना, 5,000। हाँ वही कह और वो 1,000 1,000 बाद में मिलेगा। जननी ऐसे ही सुरक्षा कोई ये था। जननी सुरक्षा योजना में और ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, इन दोनों में लिमिटेशंस हैं कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मिल सकता है, मतलब कि तो शायद जननी में शायद था कि एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ में शायद 1 है सिर्फ। उसके बाद नहीं यार, देख लेना वो 2 है या फिर उसमें है जननी में, ये चेक लेना। जननी में 2 है। 1,000 एक्स्ट्रा जो है वो अप टू 2 ही है, अप टू 2 चिल्ड्रन शायद, बाकी सबका 5,000 मिलेगा, बट अप टू 1 6,000 ऐसा। नहीं, प्रधानमंत्री मातृ में शायद 1 कर दिया गया था, इसी का क्रिटिसिज्म कहीं पढ़ा था मैंने, शायद पता नहीं, चेक कर लो एक बार। और शायद जननी सुरक्षा और जननी से एक और स्कीम है, एक में शायद 2 था और एक में शायद था एनी था शायद। इसमें ये देख लो, ऑल एलिजिबल पर प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर हु हैव देयर प्रेगनेंसी ऑन और आफ्टर 1 जून 2017 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए ये मातृ वंदना योजना। एक शायद जननी शिशु सुरक्षा योजना थी, एक जननी सुरक्षा योजना थी, और एक जननी सुरक्षा योजना देख लो। द जननी सुरक्षा योजना इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब 100% सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। Under the JSY, eligible pregnant women are entitled for cash assistance irrespective of their age and number of children. यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और वुमेन के एज का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा सेट नहीं है। द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू आशा वर्कर। ठीक है, तो आशा वर्कर जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगे उसी हिसाब से उनका जो रिन्यूमरेशन है वो भी तय होगा। स्पेशल फोकस की बात करें तो द स्कीम फोकसेस ऑन प्रेग्नेंट पुअर वुमेन विद स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर स्टेट्स दैट हैव लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो हमारे जितने भी मारू स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, उन सब पे स्पेशल फोकस रहेगा। द अबव स्टेट्स हैव बीन नेम्ड लो परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द स्कीम एंड रीनेमिंग स्टेट ड्यूटी हैव बीन नेम्ड हाई परफॉर्मिंग स्टेट। बाकी सबको हाई परफॉर्मिंग है, ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है मोस्टली इनको लो परफॉर्मिंग एरियाज हैं। क्या आइडिया है? जननी सुरक्षा
मातृ क्या वंदना, मातृ वंदना, मातृवय वंदना। हाँ, इसके अंडर नहीं आता है। अलग अलग हैं। अच्छा, एक जननी शिशु सुरक्षा योजना है, उसका उसका क्या है? शिशु भी है, कोई होती है जननी शिशु, या नहीं होती है? सॉरी। बोलिए तो देख लेते हैं। जननी सुरक्षा कार्यक्रम है, योजना नहीं है, अच्छा। योजना नहीं है। विकास पीठन देखो। ये टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी बोल रहा है, ये 5,000 कुछ तो दे रहा है। ठीक है। ये फ्री डिलीवरीज का है सर। हाँ, ओके, The NCSS provide completely free cashless service to pregnant women, including normal deliveries, cesarean operation, and sick newborn in government health institution in both rural and urban area. ठीक है। तो बेसिकली इसमें बस यही है कि कम्प्लीटली फ्री है, मतलब वहां से एम्बुलेंस में आना, एम्बुलेंस में ले जाना, तो ये जो सिजेरियन ऑपरेशन है वो कराना, तो वो सारा जो प्रोसीजर है फ्री है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने आती है प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसको वो सर्विस डिनाई नहीं करे। क्या आइडिया? तो ये दो दो चाइल्ड के लिए कहाँ था यार, कहीं था ना? नहीं, कहीं नहीं था। तो कोई मेरे को बता देना। अभी तो आई थिंक ये 3 स्कीम में तो 2 चाइल्ड, मिलेंगे। 2000 रुपीज मिलेंगे। कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना, वो मिलेगा। तो उसमें था ये शायद। विजन कुछ डाला है। वो तो वो वाली थी मातृ वंदना योजना थी ना, उसमें 3 इंस्टॉलमेंट मिल रहे थे, 2000। तो ये यार बेसिकली इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम, डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। वॉल्यूम स्लो आ रहा है तेरा गौरव। ये हो गया अपना। ठीक है, एलोकेशन कॉस्ट देख लो, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइडेड है, एक बार वो और समराइज कर दो। एलोकेशन है कि स्टेट तक ग्रेन्स पहुंचाना और स्टेट से फिर एफसीआई, फिर एफसीआई से एफपीएस तक पहुंचाने का काम सेंटर का है, और स्टेट का काम है इम्प्लीमेंटेशन, और फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, रेशन कार्ड्स इशू करना, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स के थ्रू। तो ये स्टेट का है, बस यही है। और फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब स्टेट के अंडर आता है। अभी वो दिल्ली वाला तो चल रहा है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, घर तक पहुंचाने वाले थे ना। हाँ, घर तक पहुँचने वाले। पहुंचा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा ना? नहीं पहुँचा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लिया, ऐसा कह रहा था। हाँ, किसी को पढ़ना है या कंटिन्यू करो? आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड। Recently, Mera Ration app was launched under the scheme to help the One Nation One Ration card beneficiaries. It allows users to check what they are entitled to, locate nearby ration shops, etc. It also supports biometric authentication. Objectives है national, interstate and intrastate portability to all ration card holders under NFSA. No poor person should be deprived of getting subsidized food grains under the food security scheme when they shift from one place to another. तो ये इन द वेक ऑफ कोविड हुआ है, माइग्रेंट लेबर्स का जो हाल हुआ था उनकी वजह से। फिर salient features हैं, the scheme was launched in 2019 with the following aims: to ensure all beneficiaries, especially migrants, get ration, wheat, rice, and other food grains across the nation from any PDS shop of their own choice. Under the existing system,
one ration card holder can buy food grains only from the PDS in the locality where he or she lives. This will change once the One Nation One ration card system becomes operational nationally. To reduce instances of corruption by middlemen and fraudulence in ration cards to avail benefits from different states. To reduce the incidence of hunger deaths in the country, to further improve rankings in the Global Hunger Index. Global Hunger Index किसका है? FAO का? वेल्थ हंगर बॉक्स ना? हाँ वेल, किसका? वेल्थ हंगर समथिंग, हाँ सही बोल रहा है। जर्मनी वाला। Okay. The beneficiaries will be identified on the basis of their Aadhaar-based identification through the electronic point of sale device, integrated management of PDS portal provides the technological platform for the interstate portability of ration cards, enabling a migrant worker to buy food grains from any fair price shops across the country. Other portal anvitran.nic.in hosts the data of distribution of food grains through e-POS devices within a state. In budget 21-22, the government announced that One Nation One Ration Cards schemes being implemented in 32 states and UTs, reaching about 69 crore beneficiaries, that is around 86% of total beneficiaries. The remaining 4 states and UTs, Assam, Chhattisgarh, Delhi, West Bengal, will be integrated into the scheme in the coming few months. नोट में दिया है, द सेंटर इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स टू 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट in 2021 from 3%. However, incremental borrowing beyond 3.5% of GSDP is linked to reforms undertaken by the states. तो reforms यहाँ करना होगा, universalization of ONORC, ease of doing business, power distribution reform, urban local body reforms. समराइज कर दे इसको। हाँ, तो वन नेशन वन राशन कार्ड का एम है कि पुअर पर्सन कहीं भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट्स कहीं भी राशन अफोर्ड अवेल कर सकें। सेलिएंट फीचर्स में है कहीं भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपने चॉइस के फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं जो अभी तक जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस फेयर प्राइस शॉप में उनका नाम है बस वहीं से लिया जा सकता था, तो उसको इन्होंने चेंज कर दिया। और इसका करने का ये भी फायदा ये होगा कि मिडिलमैन और जितने भी फ्रॉडुलेंस है, ऐसा होता था कि जो उस स्टेट में है नहीं उसकी जगह पे कोई और लेता था, तो इन सबको एलिमिनेट करेंगे, इससे करप्शन रोकेंगे। फिर टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ हंगर डेथ्स, तो हंगर डेथ्स है उनको कम करना है और इसके थ्रू इम्प्रूव करना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना रैंकिंग। ये आधार आइडेंटिफिकेशन के थ्रू होगा, जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है उसके थ्रू। और है या एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें सारा आधार के थ्रू सारा डेटा एक जगह पे होगा, वही है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस। फिर एक और पोर्टल है अन्न वितरण, जो सारा डेटा स्टोर करेगा, जिसमें मतलब फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। विदिन अ स्टेट, हाँ ये विदिन अ स्टेट है। फिर सारे स्टेट्स 32 स्टेट्स एंड यूटीज ने कर लिया है ये, कुछ 3, 4, 5 है, कुछ असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली इनमें हो जाएगा बाद में, वेस्ट बंगाल बस। और स्टेट बोरिंग्स को बढ़ा दिया है 3 to 5%, फ्रॉम 3 to 5%, और उसके पीछे 3.5 से ज्यादा
बोरो करने के लिए स्टेट को कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसमें है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ये वन राशन कार्ड, ये वाला। उसके बाद फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, उसके लिए काम करना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स करने होंगे और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स करने होंगे। अच्छा, ये इसमें 50% वाला कैवेट है क्या अभी भी? 50% वाला कौन सा? वो पहले एक्चुअली सीए में पढ़ा था मैंने लास्ट ईयर शायद, कि 50% ही राशन उठा सकते हैं माइग्रेंट्स अपने जो फैमिली का है। वो अभी भी है या फिर उसको चेंज कर दिया? नहीं, आई थिंक वो अभी भी है। अभी भी है वो। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ दिया नहीं है। हाँ वही। करेक्ट। नहीं तो कोई एक ही लेबर जो है वो अगर दूसरी सिटी में जाता तो सारा अपना फैमिली का राशन उठा लेगा, थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यस, राइट। हाँ, नेक्स्ट इज अन्नदाता अन्न योजना। कोई पढ़ेगा इसको? और Should I शशांक read? भैया आप पढ़ोगे? हाँ, Okay. नहीं। Okay. Carry on, carry on. नहीं वो नहीं नहीं। मना कर रहा है। You can read. Okay. Okay. Antyodaya Anna Yojana. Objective to target poorest of the poor population and provide them relief from hunger. And intended beneficiary, landless agriculture laborers, marginal farmers, rural artisans or craftsmen, and persons earning their livelihood on daily basis in the informal sector. Then widows, terminally ill or disabled persons, persons aged 60 years or more, single women or single men with no family or societal support or assured means of subsistence, all primitive tribal households, all eligible below poverty line families of HIV positive persons. So salient features are, it covers poorest of the poor families from amongst BPL families covered under targeted public distribution system within the states and provides them food grains at a highly subsidized rate of rupees 1 per kg coarse grains and rupees 2 per kg for wheat and rupees 3 per kg for rice. It is a part of NFSA and eligible households are entitled to 35 kgs of food grains per household per month. 35 kgs of food grains per household per month. So states or union territories are required to bear the distribution cost, including margin to dealers and retailers as well as transportation cost. So it is targeted for poorest of the poor, and intended beneficiaries are they have covered landless agriculture laborers, marginal farmers, and artisans and craftsmen are also covered, and daily wage workers in informal sector, then widows, terminally ill or disabled persons 60 plus. ये कैसे मतलब how do we remember these? Who all are covered? आई थिंक ब्रॉडर सेंस में देख लो, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हो गया, विडोज टर्मिनली इल पीपल हो गया, प्रिमिटिव हाउसहोल्ड हो गया, और बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल विद HIV। आई थिंक इन वल्नरेबल सेक्शन। हाँ, ब्रॉडर लेवल पे देखोगे ना तो वल्नरेबल जैसे सेक्शन बोला तो आई थिंक हो जाएगा लिंक। ओके ओके। सो ये इंडिया सारे में मार्जिनल कितने हैं? फार्मर्स डेफिनेशन क्या है मार्जिनल की? लेस देन 1 है। फार्मर्स की बात 1 कर रहे हैं। hectare. Less than 1 hectare marginals. not Vijay is saying not needed to remember. नहीं, दैट इज No, फाइन, ये बट is डेफिनेशन important. क्या है? स्मॉल, मार्जिनल, 3-4 टाइप है ना, कौन से? मार्जिनल होता है, लेस देन 1 होता है, फिर इसके बाद स्मॉल आता है, 1 से 2 होता है, उसके बाद जो बचा। ठीक है। Okay, and then BPL families covered under targeted public PDS, targeted PDS BPL families, and coarse grains is 1 per kg, wheat is 2 per kg, and rice is 3 per kg, and it is part of NFSA, and 35 kgs of food grains per household per month, and it's
margin to dealers is it should be borne by states or union territories. How is it different from TPDS? उसमें 35 केजी नहीं है, इसमें 35 केजी है फैमिली को, उसमें 5 केजी पर पर्सन है, इसमें 35 केजी पर पूरा हाउस होल्ड का है। एनएफएसए के अंदर ना इसको सब्ज्यूम कर लिया है। हाँ हाँ राइट। एनएफएसए के अंदर ऊपर पढ़ा था ना, 2 है, एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड है और ये एक दूसरा ये है अंत्योदया। 14 में और भी कुछ चीजें हैं जो पीडीएस वाले में नहीं है। आगे वही है, टीपीडीएस है। ये पढ़ लेते हैं अगला। Okay. Targeted Public Distribution System, TPDS. Objective: to identify the poor households and giving them a fixed. Can you scroll a little? Giving them a fixed entitlement of food grains, rice, and or wheat at specifically subsidized prices. The intended beneficiaries, the NFSA Act 2013 provides for all India coverage of up to 75% of rural population and up to 50% of urban population of the country for receiving highly subsidized food grains. Thus, the coverage under TPDS has been delinked from the poverty estimates. So, salient features: it is operated under the joint responsibility of central and state or union territory governments. Joint responsibility of state and central. And central government is responsible for procurement, allocation, and transportation of food grains up to the designated depots of the Food Corporation of India. And state or union governments is responsible for the operational responsibilities for allocation and distribution of food grains within the states or union territories, identification of eligible beneficiaries, issuance of ration cards to them, and supervision over and monitoring of functioning of fair price shop. So the end retail price is fixed by the state or union territories after taking into account margin for wholesalers or retailers, transportation charges, levies, local taxes, etc. And TDPS Control Order 2015 and PDS Control Order 2001 stipulated that state or union UT governments are required to review the lists of beneficiaries every year. And to provide the violation of provisions of TPDS Control Order 2015 and NFSA 2013, the Department of Food and Public Distribution is implementing a plan scheme on end-to-end computerization of TPDS operations on cost-sharing basis with states or union territories. So, I'll summarize this. So beneficiaries are again poor households, and objective is to give fixed entitlement of food grains, rice and wheat, and the intended beneficiaries are 75% of rural population and 50% of urban population. So actually in this, it is not linked with the poverty, delinked from the poverty estimates. इसका क्या मतलब हुआ? पॉवर्टी लाइन के अंदर इंडिया के अंदर अभी 21% है ना पॉवर्टी लाइन, 67% कवरेज कर दिया, तो उस रिस्पेक्ट में कह रहा है कि डीलिंक कर दिया। I have a doubt. So if it is delinked with the poverty estimates, how will they identify the beneficiaries? ऊपर हमने देखा था ना, नेशनल एक प्लानिंग कमीशन ने एक यूज किया था, वो एक सर्वे, उसके बेसिस पे दे आइडेंटिफाइड नेशनल सैंपल सर्वे। हाँ वो है ना, नेशनल हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, इस डेटा के ऊपर उन्होंने इनको कैटेगराइज किया। Right, got it. So then comes the procurement and getting it to the depots. FCI, getting it to the FCI, it is the job of the central government. Its responsibility is procurement, allocation, transportation of food grains. After that, state governments, they'll do the allocation and distribution.
and identification of the beneficiaries, issuance of ration card, and monitoring of the FPS, fair price shops. This is the job of state governments. Then TDPS. So the list of beneficiaries has to be reviewed every year under the TDPS Control Order 2015 and PDS Control Order 2001. So, and on cost sharing basis, the central government and state government are doing end-to-end computerization of TPDS operations. Yeah. Shall we discuss that question posted by Vijay? हाँ quickly कर दो ना 5 minutes we'll finish quickly discuss. Yeah, I will discuss. So the question is, what are the reformative steps taken by the government to make food grain distribution system more effective? मैंने थ्रेड बनाया है इसका एक चैनल पे, यू कैन कमेंट योर इनपुट्स देयर एज वेल. बताओ इसको कैसे अप्रोच करोगे. I think जो हमने last 2 schemes पढ़ा ना, तो they're directly linked to this question, right? तो IM PDS वाला integrated management of PDS, उसके अंदर one nation one ration card and even direct TPDS. तो इसके अंदर जो भी steps they mentioned, right, specifically like end-to-end computerization and linking Aadhaar of beneficiaries. I think in that context only, maybe recently they've asked this question. Can we talk about logistics and storage over here? Yes. So, are there any programs where they have the efficiency of logistics and storage has increased? I think इसको उससे लिंक कर सकते हैं ना, वेयर हाउसेस को बनाने है, क्योंकि आई थिंक शॉर्टफॉल है कई सारी चीज़ों में, स्पेशली फॉर द पेरिशेबल आइटम. बट आई थिंक क्वेश्चन शायद FCI रिलेटेड रिफॉर्म्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे. FCI रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हुए हैं. हाँ बता दो, कुछ बता दो. नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि FCI में अभी रिसेंट में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, वो इसमें डाल सकते हैं ना. वो नीति कुछ निकला था ना कि प्राइवेट में भी बेच सकते हैं, जो बीच का गैप होगा वो कर देंगे, फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो फार्म के इसमें आएगा, फार्मर्स के एरिया में. मतलब ब्रॉडली इवन FCI भी उसका कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज किया है, स्टोरेज कैपेसिटी और इवन द क्वालिटी ऑफ स्टोरेज आल्सो, बिकॉज़ रॉटन हो जाता था ना बहुत सारा. एंड इवन वो लोगों ने बोला है कि प्राइवेट में ये सेल कर देंगे तुरंत, ताकि मतलब वो जो TPDS है वो ऐसे जोन लेवल पे भी चला जाए. वैसे कुछ किया है, पहले वो स्टेट लेवल पे जाता था, अभी जोन लेवल पे कर दिया सर. एक PM आशा स्कीम की शायद उसमें क्या था, किसी को याद है? PM आशा करके थी, उसमें 3 सब कंपोनेंट थे ना PM आशा. हाँ वही उसी में 3 थे ना. तो वन ऑफ द कंपोनेंट शायद वो टारगेटेड डिलीवरी का था. हाँ प्राइवेट का था. हाँ राइट. अच्छा, वो FCI रिलेटेड शांता कुमारन कमेटी है ना? करेक्ट. FCI रिफॉर्म्स रिलेटेड. ओके. Praveen Kumar is saying deduplication of ration cards. That is also important. वो PM आशा में PSS से PDPS है जो प्राइवेट वाला बोल रहा था, और PPPS है. Right, for this deduplication of Aadhaar ration card, no, they're doing same thing, na, linking with Aadhaar, etc. हाँ, DBT लिंकिंग में था. हाँ, तो POS मशीन से लिंक कर दिया ना, so that they also capture the biometric details. So I think वो deduplication को एड्रेस करेगा. हाँ, कोई भी फिंगर करने पे वो होता है सेलेक्ट करके. करेक्ट. एक और हमने इसमें ये देखा, to prevent violation of TPDDS, the Department of Food and Public Distribution is implementing a plan scheme on end-to-end computerization. तो इससे जितना भी जो एक तरीके से डेटा लीक होता था या फिर जो मॉनेटरी लॉस होता था, बिकॉज पीपल व्हाट दे यूज्ड टू मतलब उसको ओपन मार्केट में बेच देते थे, तो वो चीज को भी एड्रेस कर लेगा, क्योंकि सारा डेटा एंड टू एंड कंप्यूटराइज होगा.
तो कहीं से भी किसी को एम्बेजलमेंट या ये साइफन ऑफ करने का चांस नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इसमें कोई केस स्टडी वैसे अभी भी एक उसमें क्रिटिसिज्म उसका आ सकता है, मैंने ग्राउंड पे देखा हुआ है वो, कि वो लोग जो ग्रेन्स होते हैं वो 4 kg या फिर 3 kg देते हैं, 3.5 kg, जो कि 5 kg देना रहता है पर पर्सन, तो उसमें वो काफी बेच देते हैं बाहर बोरी की बोरी ऐसे। हाँ तो वो एग्जैक्टली पूरी तरह से वो फुल प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका एक रिसेंट था ना कि लॉरी को भी वो वे कर रहे थे ना, पूरा लॉरी को वे कर रहे थे, लॉरी को दे वर ट्रैकिंग आल्सो, वो लोकेशन कहाँ जा रहा है ऐसा कुछ। हाँ जीपीएस ट्रैकिंग है ना, ई टैग ना। एक कोई जो के स्टडी थी शायद ना, झारखंड या फिर वहाँ का पीडीएस सिस्टम सबसे अच्छा है, तो उनका एग्जांपल दे सकते हैं ना शायद, कहीं है झारखंड छत्तीसगढ़ में इसमें पीडीएस सिस्टम वहाँ का काफी रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ पे, किसी को आइडिया है? आई थिंक छत्तीसगढ़ बेस्ट है शायद। हाँ, तो वो केस स्टडी में डाल सकते हैं ना, मतलब नीचे लास्ट वो में। अभी यहाँ ग्राउंड में झारखंड में ये भी देखा गया था कि बायोमेट्रिक के क्या मतलब चैलेंजेस हैं। जैसे एल्डरली पीपल का वो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स वो काम नहीं करता है, हाँ, गांव में किसी का भी नहीं करता है। हाँ, बहुतों को वापस कर दिया गया था विदाउट राशन। वो हर मंथ होता है उनके साथ, ऐसा नहीं है, और सबके साथ होता है, सिर्फ एल्डरली नहीं, क्योंकि गांव पे लोग जो काम करते हैं उनका वो उंगली का कुछ तो हो जाता है, मतलब वो जो मैच नहीं होता उसमें, तो इसके लिए वो लोग वापस भेजते हैं। क्या हुआ? स्किन रफ हो जाती है तो वो पकड़ नहीं पाता है। Vijay, you were talking about the weighing of the vehicles and the tracking of the vehicles. Under which scheme is that? No, I don't remember the scheme, but recently it was there in news, right? It is right. It is right. Entire lorry they were weighing, that photo was coming in news. Yes. जीपीएस एनेबल ट्रैकिंग कर रहा है आजकल वो, आई थिंक उसको कुछ नाम है, जियो टैगिंग ऐसा कुछ बोलते हैं यार। Right. अच्छा, ये सिविल सोसाइटी को देने का पर्पस हो सकता है कि जो जैसे वो कंट्रोल वाला सिस्टम होता है ना जो पीडीएस का, वो सिविल सोसाइटी को देना बेटर रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग वहां पे करप्शन कम होते हैं, मतलब। आई थिंक रादर देन सिविल सोसाइटी हमारे पास एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन पंचायती राज के फॉर्म में है, तो आई थिंक उसको स्ट्रेंथन कर ले तो वो बहुत करेगा। और जो ये फेयर प्राइस शॉप डीलर जो होते हैं ना, वो जनरली जो गांव में क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड जो यूथ होते हैं ना, उनको ही मिलते थे, मतलब पहले तो ये सिस्टम था, तो ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। Guys, I have a doubt here. Can we मतलब अभी we are talking about civil societies को देना है, ये तो अभी गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है, this is our own opinion है ना, ये आंसर में लिख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अगर आपसे सचिव पूछ रहा है तो लिखें। Okay. No, that point is correct actually. I mean, lack of community participation is a criticism for this PDS. Right. और कोई पॉइंट है किसी पर? I think चलता है, वो एक PDF डाला है मैंने, उसको बाद में देख लेना सभी। राइट, नेक्स्ट है हम कॉर्पोरेट अफेयर्स। Okay. Ministry of Corporate Affairs, schemes in news. So MCA 21 project. MCA 21 project is the first mission mode e-government project of the Government of India. It enables an easy and secure access of MCA services to the corporate entities, professionals and citizens of India. In financial year 2021 to 22, MCA 21 3.0 would be launched. It is a technology-driven project envisioned to strengthen enforcement, promote ease of doing business, enhance user experience, and facilitate seamless integration and data exchange among regulators. It was additional modules of e-adjudication, e-consultation, and compliance management system, MCA Lab. MCA Lab will consist of corporate law experts. It will help MCA in ensuring the correctness of results produced by these key modules in view of dynamic corporate ecosystem. It will also have a cognitive chat box enabled help desk.
cognitive chat box enabled help desk, mobile apps, interactive user dashboards, enhanced user experience using UI or UX technology, and seamless data dissemination through APIs. Can somebody summarize this? Or should I read it again? आप ही कर दो ना. Actually, okay, fine. So it is a mission mode e-government project. It enables and secures access of MCA services to corporate entities, professionals, and citizens. Okay, and it strengthens enforcement and promotes ease of doing business, enhances user experience, it seems, and facilitates seamless integration and data exchange among regulators. I didn't here understand what are the regulators here. मतलब यहाँ से जो डेटा है ना, एमसीए क्या करेगा, जितना भी कॉर्पोरेट्स का डेटा है इंडिया में वो सब आगे मिनिस्ट्रीज को देगा. जैसा आपका लेबर मिनिस्ट्री हो गया या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो उसमें इनकम टैक्स का डेटा चाहिए होगा, तो वो उनको मतलब पास ऑन करेगा. तो ये बेसिकली एक डेटाबेस मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे सारी जो डेटाज हैं, जो रिलेवेंट डेटाज है, वो कलेक्ट होंगे और फिर वो आगे डिसेमिनेट होंगे. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से फाइनेंस को क्या चाहिए, इनकम टैक्स डेटा चाहिए होगा, या लेबर मिनिस्ट्री को क्या चाहिए, लेबर कंप्लायंस का डेटा चाहिए होगा. तो ऐसे ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को या अलग अलग किसी और एजेंसी को भी अगर चाहिए होगा तो वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. Okay. And इनके additional modules है e-adjudication, e-consultation and complaints management systems, MCA lab. So it will consist of all corporate law experts, and okay. Akshay is saying bekar scheme. Ignoring that. Okay. Corporate law experts, and इनका cognitive chat box है cognitive chat box enabled help desk, and it mobile apps. Basically it is all user friendly, interactive user dashboards and all. UI or UX technology है, seamless data dissemination. So I didn't understand who all are the users here. मतलब like you said, all the ministries, is it? Second statement says no, corporate entities, professionals, citizens of India. Right. And of course ministries तो होंगे ही. Okay. आई थिंक वो बात हुई थी ना, डेटा सेल करेंगे, तो इस टाइप के डेटाबेस अगर पहले से रेडिली अवेलेबल होंगे तो दे कुड बी मेड अवेलेबल टू दीज डिजिटल कंपनीज. तो उससे कुछ सैल्वेज करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. जैसे बिग डेटा यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी साइफन ऑफ कर रही है मनी. तो बहुत सारे टूल्स है जो यूज हो सकते हैं अगर ये डेटा हमारे पास प्रॉपरली कलेक्टेड हो. Basically this is creation of a database. करेक्ट. Right. जैसा एक्सेल होता है ना. जीडीपी कैलकुलेशन में जब उसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स का भी डेटा लिया जाता है ना, तो उसके लिए कुछ यूज MCA 21 की हेल्प ली जाती है ना, कुछ ऐसा था ना जब लोगों ने पढ़ा था जीडीपी कैलकुलेशन में. वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट है ना, वहाँ ये डेटा काम आता है. क्योंकि डेटा एक जगह शायद इन्हीं के थ्रू मिलता होगा, इंटीग्रेशन करते हैं ना. Okay. So LLP settlement scheme 2020. It allows one condonation of delay to the defaulting limited liability partnerships to complete their pending compliances without payment of any additional fees during the moratorium period. LLP are hybrid of partnership firm and a company having lesser compliance and limited liability, making it sought after business structure. LLP बताएंगे सबको. हाँ, इसमें ये फेलियर हो जाता है तो पर्टिकुलर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो फेल होता है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. करेक्ट. ऐसा होता है. हाँ, दूसरा मतलब अगर मल्टीपल बिजनेस पार्टनर है तो किसी एक बिजनेस पार्टनर के फॉल्ट के ऊपर बाकी लोग उसको कोई वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. इसमें ऐसा है क्या कि योर पर्सनल प्रॉपर्टीज विल नॉट बी confiscated or anything? हाँ, not for the act that
some other partner has done in that firm. Right. इसके अलावा एक स्पाइस स्कीम भी थी, वो शायद इसने मेंशन नहीं करी है। स्पाइस 2.0 आ गया है। तो बेसिकली इट वाज 3 मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ईज ऑफ डूइंग प्रमोट कर रही है, मतलब एक कोई कंपनी अगर नया इंडिया में वर्क करना चाहती है तो इजीली सारा सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉइंट वो ऐसा पोर्ट करना है। संजय आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी कॉल आ गया था, अब आ रही है क्या? हाँ Now it's fine. हाँ नहीं आ रही है आपकी आवाज। ओके थैंक यू। तो स्पाइस 2.0 इन्होंने 3 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और लेबर में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा। मल्टीपल ये 3 मिनिस्ट्रीज है ना, तो कोई भी कंपनी अगर इंडिया में वर्क करना चाहती है तो उसको अलग अलग इन मिनिस्ट्रीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। दे नीड टू गो डायरेक्टली टू स्पाइस 2.0 पोर्टल और वहां से तीनों क्लियरेंस उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव। बस ये याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस एंड लेबर। Right. देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Newly launched schemes, Defense Testing Infrastructure Scheme, DTI scheme. Objective is to promote indigenous defense production with special focus on participation of MSMEs and startups by bridging gap in defense testing infrastructure in the country. So salient features, the scheme would run for the duration of 5 years. It envisages setting up of 6 to 8 new facilities in partnership with private industry. This will facilitate indigenous defense production, consequently reduce imports of military equipment and help make the country self-reliant. Each DTI will be set up through a special purpose vehicle which will be the implementation agency. Then only private entities registered in India and state government agencies will qualify for forming the SPV. The SPVs under the scheme will be registered under Companies Act 2013. The SPV shall also operate and maintain all assets under the scheme in a self-sustainable manner by collecting user charges. And funding, the projects under the scheme will be provided with up to 75% government funding in the form of grants in aid. The remaining 25% of the project cost will have to be borne by the SPV. The equipment or systems tested will be certified as per appropriate accreditation, while majority of the test facilities are expected to come up in the 2 defense industry corridors. The scheme is not limited to setting up test facilities in the DICs only. So, the objective of the scheme is to make indigenous defense production, and startups and MSMEs are encouraged, and they're trying to bridge the gap in defense testing infrastructure. And salient features is a scheme will run for 5 years. It envisages 6 to 8 new testing facilities and reduces import of military equipment. Each DTA will be set up through a SPV, special purpose vehicle, and only who all are eligible is the private entities and the state government agencies. They are qualified to form the SPV. So SPV under the scheme will be registered under Companies Act 2013. And the SPV shall also operate and maintain all assets. ये मुझे समझ में नहीं आया. So they'll be under the scheme in a self-sustainable manner by collecting user charges. What is user charges? मतलब ये एक जैसा हमने पढ़ा था ना कल के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, उसके अंदर यूज करने का काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज करेंगे। जैसे क्या है, किसी ने कोई कैनन बनाई है, अब उसको टेस्ट करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होगी, हर कहीं उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसका एरिया क्रिएट किया जाएगा
और उसको मेंटेन करने का काम SPV का होगा। तो सपोज आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है जो ये कैनन बनाती है, तो यू कैन गो टू दिस प्लेस एंड टेस्ट योर कैनन, ठीक है। वो टेस्टिंग का और वो फैसिलिटी यूज करने का चार्ज आपको SPV को देना पड़ेगा। दिस वे SPV विल बी अ सेल्फ सस्टेनिंग एजेंसी, उसको बार बार रिकैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। Okay. So the SPV funding will be from government, 75% in the form of grant in aid, and 25% shall be borne by the SPV itself. And the equipment or systems tested will be certified according to the appropriate accreditation. And so while majority of the test facilities are expected to come up in 2 defense industrial corridors. So but this scheme is not just limited to the defense DICs. करेक्ट। अब ये भी बताओ 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कौन से हैं और वेयर आर द लोकेशन? मैं बता रहा हूँ, वेस्टर्न झांसी के पास है, तमिलनाडु में शायद है। बहुत ही बढ़िया, ये उत्तम सही बोल रहे हैं। यूपी और तमिलनाडु में डेवलप होना, ठीक है। तो ये स्कीम का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, दे शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू दोज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और भी जगह उन्हें खोला जा सकता है। इंडिया में अभी कोई डिफेंस टेस्टिंग प्लेस का नाम बता सकते हो? Defense testing. अब्दुल कलाम आइलैंड। करेक्ट, लीडर वाला, राइट। तो ये हो गया अपना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। आई थिंक इसको डिस्कस भी कर रहे थे हम कहीं पे, ये देख लेते हैं। Okay. 1 rank, 1 pension scheme. The scheme is effective since 1st July 2014, and recently it has completed 5 years. It was launched in 2015. Objective: to provide uniform pension. To provide uniform pension be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, regardless of their date of retirement. To bridge the gap between the pensions of current and past ex-servicemen at the periodic intervals. Okay, salient features. नीचे और भी है क्या ऑब्जेक्टिव? नहीं। Okay. Salient features. The arrears will be paid in 4 half-yearly installments. However, all widows, including war widows, will be paid arrears in 1 installment. So, pension will be refixed for all pensioners retiring in the same rank and with the same length and service as the average of minimum and maximum pensions in 2013. Personnel who voluntarily retire will not be covered under the OROP scheme. In future, the pension would be refixed every 5 years. Before OROP, ex-servicemen used to get pensions as per the pay commission's recommendations of the time when they had retired. So OROP objective is to pay pension to the armed forces personnel retiring in whoever has the same rank, same length of service, and regardless, I mean, basically it's all, before this, it was dependent on the date of the retirement. It was dependent on the pay commission. But now, whoever retires in the same rank and with the same amount of service, they'll be having equal pension. So, features में arrears will be paid in 4 half-yearly installments. अगर arrears है तो 4 half-yearly installments, and all widows, including war widows, will be paid arrears in 1 installment. So, and voluntary retirement is not covered, and pension would be refixed every 5 years. Right, तो ये था 1 rank 1 pension. Right, next is Ministry of Earth Sciences. आप पढ़ लोगे या और कोई? Anybody can take over. कोई वॉलंटियर है? मैं पढ़ती हूँ। कोई है? वो आई थिंक शिवानी, आपके भी माइक में कुछ नॉइज हो रहा है, ठीक है, पढ़ दो। अरे नहीं, वॉलंटियर ही किया था, पर अदिति, अरे पढ़ लो शिवानी जी। हाँ पढ़ लो। शिवानी। Schemes and news, atmosphere and climate research, modeling, observing systems and services across. Why news? The scheme was recently reviewed by the Ministry of Earth Sciences. Objective:
to conduct research and development for improving forecast of weather, climate, and other hazardous events in real time for delivery of a reliable weather and climate services. This requires augmentation of observations and their assimilation into weather and climate models, understanding the physical process through field campaigns, developing and running of high resolution models for giving forecast in all scales, translating science to service and its delivery to society, improving and acquiring the required infrastructure. तो ऑब्जेक्टिव जो इसका मेनली है वो यही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको और कंडक्ट करा जाए ताकि वेदर, क्लाइमेट और अदर हजार्डियस इवेंट्स के बारे में हमको रियल टाइम में नॉलेज जल्दी मिल जाए, और ऑब्जर्वेशन वगैरह इनको फास्ट करना है और इकट्ठा करना है अगेन क्लाइमेट मॉडल के रिलेटेड, फिर फिजिकल प्रोसेसेस पे वर्क करना है थ्रू फील्ड कैंपेन्स मतलब रिसर्चेज वगैरह, और डेवलपिंग एंड रनिंग हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स फॉर गिविंग फोरकास्ट। ओके, तो ऐसे डिवाइसेस, ट्रांसलेटिंग साइंस टू सर्विस, ठीक है, साइंस मतलब लोगों की हेल्प वगैरह में आए, ह्यूमैनिटी को सर्व वगैरह करे, इम्प्रूविंग एंड एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आए। तो 4-5 पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव में। देन सेलिएंट फीचर, इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017 to 2020. It covers research and development and operational activities on weather and climate related phenomena. ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में भी बता दिया। It is being implemented through India Meteorological Department (IMD), Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) Pune, National Center for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF). तो 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आई हैं इसमें। देयर आर 9 सब स्कीम्स, क्योंकि अम्ब्रेला स्कीम है तो इसमें 9 और स्कीमें हैं, दिखा दो वो स्क्रॉल। कमिश्निंग ऑफ पोलैरीमीट्रिक डॉपलर वेदर रडार्स और इम्प्लीमेंट करेगा IMD। अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम अगेन IMD। वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज IMD। एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क IMD। न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट NCMRWF। मॉनसून मिशन 2 including high resolution 12 kilometer global ensemble forecast system, Niti Aayog identified activity, IITM monsoon convention, cloud and climate change MC4 IITM, high performance computing system HPCS IITM, national facility for airborne research NFAR IITM। तो पूरी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो ये स्कीम लेके आ रही है, मतलब ये पहले ही है, वो रिव्यू कर रही है ना, ऊपर करना। और ऊपर वाली लाइन सबसे टॉप वाली, हाँ, रिव्यू कर रही है, रिसेंटली रिव्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ऑब्जेक्टिव इसके हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे वर्क करना, ऑब्जर्वेशंस पे वर्क करना, रिसर्चेस पे वर्क करना, और क्या था, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना। एक और ऑब्जेक्टिव था, स्क्रॉल, हाँ, सोसाइटी को सर्व करना। फिर उसके बाद जो सेलिएंट फीचर्स हैं, अम्ब्रेला स्कीम है 2017 to 20, और काम करना क्या, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगे किस पे, वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना पे। 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और 9 सब स्कीम्स हैं, वो देख लिए। ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम कहाँ पर है? पता नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हमारा जो भी मॉनसून सिस्टम में हाई रेजोल्यूशन है वो 12 किलोमीटर तक हम लोग कर सकते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट है ना IITM वाला, शायद कौन सा, सब स्कीम्स में देखो, अगर हमारा इसमें लिखा है ना ब्रैकेट में 12 किलोमीटर, थोड़ा स्क्रॉल करो इसमें नीचे, हाँ, ये हाई रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर। सर यूरोपियन या अमेरिकन में जो सिस्टम है वो 9 किलोमीटर का, वो सबसे बेस्ट है अभी तक, मतलब वर्ल्ड में। हम लोगों ने शायद किसी एक यूरोपियन के या अमेरिकन की बराबरी कर ली है, उसमें से किसी एक का 9 किलोमीटर भी है, मतलब वहां तक का रेजोल्यूशन अगर हम बेटर कर लेंगे तो हम उतनी जल्दी
बता पाएंगे कि अगर पानी बरसेगा तो इस एरिया में किस लोकेशन बरसेगा, मतलब वो होगी बारिश होगी, वो उतना तक हाई रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया। तो 9 किलोमीटर अभी हम लोग का टारगेट है। और इसमें एक डॉपलर वाला पहला वाला पॉइंट है ना, पहली सब स्कीम डॉपलर वेदर रडार, शायद जो अभी जो मुंबई साइड जो इस बार साइक्लोन आया था उसमें शायद यही प्रॉब्लम हुई थी ना, अगर किसी को पता हो करंट अफेयर्स के बारे में। क्या प्रॉब्लम हुआ था? डॉपलर की रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, शायद काम नहीं कर रहे थे उधर के डॉपलर, तो उन्होंने सही टाइम पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि वो सीवियर हो गया था ना इस बार वाला साइक्लोन जो मुंबई साइड आया था, तो वहां पे ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, डॉपलर वेदर रडार वाली प्रॉब्लम हुई थी। एक साथ पहले से काम नहीं कर रहा था, या शायद कुछ एक ही था, कुछ ऐसा था। हाँ करेक्ट, क्योंकि बट उधर उसके बाद साइक्लोन कम आते हैं ना। हाँ उसके बाद उन्होंने आई फ्लोस मुंबई डाल दिया ना, वो सिस्टम आई फ्लोस, जस्ट लाइक चेन्नई में सी फ्लोस था ना, उसी टाइप आई फ्लोस डाल दिया उन्होंने सिस्टम, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डाला उसके बाद, राइट? ओके किया हो गया। और ये अच्छा, उसकी इसी में NCMRWF की नोएडा है। ओके ओके, इसी में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, 2 टाइप की कंप्यूटिंग सिस्टम्स हमारे IITM पुणे में है। किसी को याद है कौन कौन से हैं सुपर कंप्यूटर्स जो यूज होते हैं IITM में? हाँ वो नाम प्रत्युष है ना, प्रत्युष है ना, मिहिर, राइट शिवाय समथिंग इज दैट। अरे कोई नया जो सुपर फास्ट है वो कौन सा है सबसे हाँ लेटेस्ट? परम शिवाय, राइट? परम शिवा है, राइट। वो शायद पुणे में किसी में एक हुआ है यूज, अभी वही हो रहा है वेदर में। नेशनल मॉनसून मिशन। National Monsoon Mission. Recently, the ministry outlined the achievements for the second वो phase. अभी देखा, वो परम सिद्धि है, फास्टेस्ट जॉब बोल रहे थे ना, परम सिद्धि। ओके ओके ओके। Ministry outlined the achievements of the second phase. Objective: develop a state-of-the-art dynamic monsoon prediction system for short range 1 to 10 days, medium range 10 to 30 days, long range up to 1 season. Developing partnership between Indian and foreign institutes to develop a system for prediction of extremes. Develop system for climate applications having social impacts such as agriculture, flood forecast. Advanced data assimilation system for preparing high quality data for model predictions. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये मतलब डायनामिक मॉनसून प्रेडिक्शन के लिए सिस्टम बनाए जाएं, शॉर्ट रेंज 1 से 10 दिन तक के, मीडियम रेंज 10 से 30 डेज की प्रेडिक्शन दे दे, और लॉन्ग रेंज की पूरे साल का हमको थोड़ा बहुत पता लग जाए। फिर पार्टनरशिप जो है वो इंडिया प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूट्स मिलके ऐसा सिस्टम पे वर्क करें। फिर खासकर उस सिस्टम्स पे जिनका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, मतलब क्लाइमेट का जो भी इम्पैक्ट सोशल चीज़ों पे आता है, लाइक एग्रीकल्चर का सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, फ्लड का सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, और डेटा एसिमिलेट करें अच्छे से, और मतलब फैसिलिटेट करेगा वो सिस्टम मेकिंग। Salient features: the mission was launched in 2012 and its first phase lasted till 2017. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune is main body responsible for execution and coordination of mission. For long-range forecasting up to a season, American model called Climate Forecast System (CFS) is used, which is a coupled ocean-atmosphere modeling system. That is, it combines data from ocean, atmosphere and land. ठीक है, तो लॉन्ग रेंज सिस्टम के लिए अपन अमेरिकन मॉडल रेफर करेंगे। वो क्लाइमेट फोरकास्ट मॉडल CFS जो है वो ओशन प्लस एटमॉस्फेयर कपल्ड सिस्टम मतलब बोलते हैं उसको, ओशन एटमॉस्फेयर लैंड वगैरह मतलब ये फीचर्स कंबाइन होंगे। फॉर शॉर्ट टू मीडियम रेंज यूनिफाइड मॉडल UM डेवलप्ड बाय UK एंड NMM ऑगमेंटेशन विद NMM ये क्या है स्कीम, दिखाना नीचे ऊपर, नेशनल मॉनसून मिशन, ठीक है। NMM augmentation with high performance computing facilities has helped in achieving a paradigm shift in weather and climate modeling for operational weather forecast. Okay. NMM Phase 2 2017-20. It is emphasized on predicting extremes and development of applications based on monsoon forecast. Achievements of second phase are:
the operationalization of monsoon mission dynamical model, that is monsoon mission coupled forecasting system, to prepare operational seasonal forecast of monsoon rainfall and temperatures. ये मतलब फेज 2 में जो फर्स्ट अचीवमेंट है वो ये MMCFS मॉडल है जो सीजनल फॉरकास्ट ऑफ मॉनसून रेनफॉल और टेम्परेचर्स के बारे में नॉलेज देता है। किसी को पता है कुछ इस मतलब मॉडल के बारे में, कुछ ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये कभी? चलो फिर आगे। इम्प्रूवमेंट इन साइक्लोन ट्रैकिंग एंड इंटेंसिटी प्रिडिक्शन, ठीक है। कमीशन ऑफ ग्लोबल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम GEFS फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज प्रिडिक्शन एट 12 किलोमीटर। Preparing regional seasonal forecast outlook for South Asia under WMO recognized Regional Climate Center and South Asia Seasonal Climate Outlook Forum activities. So यहाँ पर I just want to add, they mentioned कि global ensemble forecast system or monsoon modeling they mentioned. So these models are currently being used in like countries like Japan, US, etc. So basically क्या है कि even our MOAS also is searching for this. What happens is these are all probabilistic models, it seems. For example, if you see every monsoon ke time mein we have floods everywhere, it happens, right? All the cities, last time we saw Hyderabad, Mumbai. So what they do is they, based on the monsoon data, they will try to analyze ki is monsoon se how much flood they can anticipate in the region. So based on that, they will do some inundation modeling. So that we are also trying to incorporate. So this point you can write in the flood, flood forecasting जो भी आया ना मेंस में, तो उस एंगल में you can write this. Development of an algorithm to monitor and predict the monsoon intra-seasonal oscillation MESO and maiden Julian oscillation MJO on the extended range. Probabilistic quantitative precipitation forecast over all the Indian River Basin has been operationally implemented. ठीक है, समराइज के लिए करना। तो ऑब्जेक्टिव मेनली यही है कि मॉनसून प्रेडिक्शन के लिए सिस्टम बनाए जाए, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। इंडिया प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूट, सोशल इम्पैक्ट के लिए स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस और डेटा सिमुलेशन। Salient features launched in 2012, lasted till 2017. Phase 1 खत्म। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी पुणे, मेन रिस्पॉन्सिबल बॉडी। लॉन्ग रेंज के लिए अपन रेफरिंग अमेरिकन मॉडल, शॉर्ट रेंज के लिए वी आर रेफरिंग UK मॉडल। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज वी आर यूजिंग टू अचीव क्लाइमेट मॉडलिंग फॉर ऑपरेशनल वेदर फॉरकास्ट। सेकेंड फेज 2017 to 2020। Features MMCFS system as explained by विजय जी। फिर ये मतलब मॉनसून रेनफॉल और टेम्परेचर्स की स्पेसिफिक। उसके बाद सेकेंड अचीवमेंट इज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन साइक्लोन ट्रैकिंग। थर्ड इज अनदर सिस्टम दैट इज ग्लोबल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम which is for short and medium range prediction at 12 kilometer. Fourth one is related to WMO recognized goals, like we are cooperating with their regional climate center also, as well as South Asia Seasonal Climate Outlook Forum. Then is these oscillations, meso oscillation, maiden Julian oscillation, ताकि हमको उनके बारे में प्रिडिक्ट होता रहे। ये इक्वेटोरियल बेल्ट पे होती है ना ये। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन की कितनी को बारिश पड़ेगी इंडियन रिवर बेसिन्स में। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट थे सेकंड अचीवमेंट में। एक मॉनसून रिलेटेड, टेम्परेचर रिलेटेड, साइक्लोन रिलेटेड, फिर ये 2-3 सिस्टम आए हैं, ये देख लेना लॉन्ग रेंज कौन सा वाला है, शॉर्ट रेंज कौन सा वाला है। उसके बाद जो रीजनल सीजनल फॉरकास्ट जो मतलब साउथ एशिया में अपन WMO की रीजनल सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके, और एक ये SASCOF कोई है ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हम देख रहे हैं। और फिर ये ऑसिलेशंस के बारे में प्रेडिक्शन, और उसके बाद इंडियन रिवर बेसिन में कितनी बारिश होगी उसके रिलेटेड। मेडिन ऑसिलेशन वो एक्सप्लेन कर सकता है? ज्योग्राफी ऑप्शनल विजय जी, कमाल दिखाओ।
अरे नहीं नहीं, that is very complicated. But see, Madden-Julian oscillation जो बोलते हैं ना, is just like any other oscillation. These are called moving band of clouds. Okay, so for example, if these clouds, if they coincidentally come over Indian region in the monsoon season, we will get extra rainfall. So उस तरह का pattern है. If it coincides, we'll get more rainfall. If it doesn't coincide, we'll not get so much rainfall. Only that's about it. Don't go into depth about this. Okay. यार इनका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब एक साइकिल करने में इनको कितना, 6 मंथ क्या एक ही सीजन में हो जाता है ना, इंट्रा सीजनल होता है ना? हाँ, वो 60 to 90 days बोलते हैं जनरली. ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन है, मूविंग बैंड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं. तो आवाज आ रही है क्या अच्छा मेरी? इसको, हाँ बहुत हाँ जी, बढ़िया आ रही है। चलो यार सही है. अच्छा ये मेंस के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो मानसून सिस्टम है काफी कॉम्प्लेक्स है, नॉट मतलब लाइक अदर सिस्टम, इसलिए इसलिए इतना सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं, ताकि हमारा जितना ज्यादा, क्योंकि उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. अगर मानसून होता है तो फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो इसीलिए फर्स्ट ओरिजिन लेवल पे ये लोग काफी उसको एडवांस करने की कोशिश करते हैं. तो अगर मेंस में आएगा तो ये इम्प्रूवमेंट, ये सब जो सिस्टम्स है ना, अगर एक भी याद रह जाए तो लिख सकते हैं. हाँ, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून अगर कुछ आ गया ना तो ये सब मेंशन कर दें, बिकॉज दिस इज लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट. लाइक आई मीन इफ यू सी 4-5 years बैक एल नीनो बहुत न्यूज में था, वो भी वो नॉर्मल हो गया. ये अभी आईओडी, मैडन-जुलियन ऑसिलेशन इस तरह इमर्जिंग है. Right. Next, miscellaneous initiative. गौरव पढ़ोगे? गौरव माइक चलने की वजह से पढ़ जाओ. हाँ मैं पढ़ लेता हूँ. ओके, नॉलेज सेंटर नेटवर्क KRCnet. It aims to develop an integrated information system for providing 1.24/7 access to knowledge product like books, reports, journals, etc. It is done under Digital India Initiative. The traditional libraries of Ministry of the अर्थ साइंस. MUAS क्या है ये? अर्थ साइंसेस. हाँ राइट राइट. Traditional libraries of Ministry of Earth Science system will be upgraded into KRC. यार मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है इसका. डिजिटल इनिशिएटिव कब आया knowledge था? resource है. लिखा है ना नॉलेज रिसोर्स सेंटर. हाँ नहीं मतलब इसके जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव था ना, इसके बारे में कुछ आइडिया कब आया था, कैसे आया था? इंटर रिलेटेड चीजें मतलब. अम्ब्रेला है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ना, तो वो सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको कुछ ना कुछ अपना जो वो है ना एप्लीकेशन या प्रोसीजर उनको डिजिटलाइज करना. तो उसमें से एक ये नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क का वो रिसोर्स करे, जिससे जितने भी इस MOES के अंदर ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं वो सारी के सारे अवेलेबल होगा लोगों को डिजिटली रीड करने के लिए. इसमें शायद 10-15 पॉइंट्स है ना डिजिटल इंडिया के, देखने तो पढ़ सकते हैं अपन, दृष्टि भी मिल जाएगा. अच्छा चलो आगे. चल ठीक है, इसको कर ले फिर देखते हैं. Okay, mobile app Mosam for India Meteorological Department. It will communicate weather information and forecast in a lucid manner with technical jargons, without technical jargons. So it has 5 services: current weather, nowcast, that is localized early warnings, city forecast, warnings, and radar products. मतलब वही है कि अपना वेदर की जानकारी देने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, और तो कुछ खास नहीं. इंडिया इनिशिएटिव. इस पे कोई मेंस क्वेश्चन पे आया हुआ शायद ना विजय जी? मौसम पे. नहीं नहीं, ये डिजिटल इंडिया. हाँ ये तो आए हो. हाँ, आई थिंक आए, बहुत से क्वेश्चन आए शायद, मे बी 2-3 क्वेश्चंस. चेक करो एक मिनट. वो जो कल हम लोगों ने भारत नेट पढ़ा था वो इसी में था ना, इसी के अंडर में था, जो 2.5 लाख विलेजेस को करना था सर. हाँ डिजिटल इंडिया बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें सब कुछ आता है. अम्ब्रेला स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम. तो सुपर अम्ब्रेला स्कीम हो जाएगी यार ये तो. तो पढ़ेगा क्या इसको?
मैं पढ़ लेता हूँ. India is among top 2 countries globally, just behind China on many dimensions of digital adoption. By 2022, India's digital economy is likely to cross 1 trillion. This was the focus at the India. एक मिनट, ये you're reading Digital India, right? तो ये सेम पीटी का ही स्कीम्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वही पढ़ सकते हैं ना, लेटेस्ट भी होगा विजन का. पेज नंबर 31 देखो. Number 31. Digital India program. Hello, bro. ठीक है, मैं पढ़ दूंगा. तो recently the scheme completed 5 years, so that's why it's important. So objective is to transform India into digitally empowered society and knowledge economy. So digital empowered society and knowledge economy. Salient features is Digital India program is centered on 3 key vision areas. First is digital infrastructure as a utility to every citizen, okay, and then governance and services on demand, and then digital empowerment of citizens. Okay, and if you see, it aims to provide much needed thrust on 9 pillars. So 9 pillars of growth areas, namely broadband highways, universal access to mobile connectivity, public internet access. So can someone tell what is the internet penetration in India percentage? Roughly, maybe I think 45% ही कुछ होगा, right? Internet penetration is well almost 50-50 बोलते हैं ना, so maybe I think it's around 45% current internet penetration. So this also we must increase. Public internet access program, e-governance, reforming government through technology, e-Kranti, that is electronic delivery of services, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs, early harvest programs. So I think these are the exactly 50%. And 20 by 2021. Okay, that's what, no? That's why we tell about digital divide. ई क्रांति हमने उस ई गवर्नेंस इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था ना. हाँ, करेक्ट. तो ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? किसको पता है? आई थिंक ऐसे प्रोग्राम जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है. एग्रीकल्चर के लिए नहीं, एग्री का नहीं है. जनरली जो भी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है विच विल गिव इमीडिएट रिजल्ट्स. Immediate benefit होगा जिनका. हाँ. एग्जांपल मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसा कुछ लो हैंगिंग फ्रूट ऐसा है ना. करेक्ट. हाँ. आई एम नॉट सो यार पढ़ाता है यार. हाँ, ओके. It says IT platforms for messaging, something like that. Like you said, it is for short time. Early harvest. Okay. So moving on, e-Kranti, electronic delivery of services. The mission of e-Kranti is to ensure government-wide transformation by delivering all government services electronically to the citizens through integrated and interoperable systems via multiple modes, while ensuring efficiency, transparency, reliability of such services at affordable cost. Okay. And then public-private partnership is preferred wherever feasible to implement e-governance projects. Okay. And then program management structure consists of, okay, there is a monitoring committee headed by Prime Minister directly, and then Digital India Advisory Group chaired by Minister of Communication and IT, Apex Committee chaired by Cabinet Secretary. Okay, so this is a structure, and then creation of central information officers in at least 10 key ministries. So 10 key ministries, so that various e-governance projects would be designed, developed and implemented faster. So CIOs का आ गया यहाँ पर, and then common service centers to take the benefits of Digital India to every corner of the country. A vast network of more than 2.5 lakh CSCs has been created.
So I think yesterday we saw no BharatNet, maybe it's linked. I think this has developed digital entrepreneurs among poor, marginalized Dalits and women of India. Okay, and in chat, if you see, Nilesh has given examples: IT platform for messages, government greetings like e-greetings, biometric attendance, Wi-Fi in all universities, public Wi-Fi, PM Vani wo bhi aayega na, right? And secure email within government, standardized government email design, public Wi-Fi hotspots, school books to be in e-books, SMS based weather information, हाँ वो farmers के लिए भी हाँ, disaster alerts, national portal for lost and found children. Okay, वो खोया पाया portal है. Okay, ठीक है. ये हो गया like Digital India Initiative under METI. Okay. I think आज के लिए इतना काफी होगा. स्टोरी कर लेते हैं. यहाँ पर मॉनिटरिंग कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये इम्पोर्टेंट है. और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन था? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है. हाँ अपॉइंट करते हैं लोग. हाँ वो पॉइंट इम्पोर्टेंट, करेक्ट. CII और क्या था? SHM. फिक्की SHM और CII. हाँ इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है. क्वेश्चन डिस्कस कर लो यार. मेंस का जो रहा था ना विजय ने, हाउ कैन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम? व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन इन दिस रिगार्ड्स? एंड आई थिंक इवन दिस ईयर, मतलब अभी 2020 मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन सेक्टर. और किसी को याद हो तो पहले वाला डिस्कस कर लेते हैं. हम लोगों ने उसमें कौन कौन सी स्कीम पड़ी है उसमें एग्रीकल्चर में? इनाम हो गया ना एक तो सबसे पहले. करेक्ट. तो थोड़ा सीक्वेंशियली सोचता है ना, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हार्वेस्ट, ऐसा कुछ पूरा चेन मिल जाता है, राइट? स्कीम्स. तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ना, लाइक फर्स्ट इनपुट जो हम देते हैं, तो वहाँ पर प्रिसिशन एग्रीकल्चर वो सर बोल सकते हैं ना, लाइक दे यूज प्रिसिशन फार्मिंग, some smart agriculture they were telling ना. तो प्रोडक्टिविटी में हमको मेनली पर एरिया में हम लोग आउटपुट बढ़ाना ना, तो उसके लिए सबसे पहले उसमें कैसे हेल्प करेगा? हाँ, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगा. राइट. नहीं, उसमें डिजिटल इंडिया का क्या रोल है, ये पूछा ना क्वेश्चन एक्चुअली. हाँ वो जो आया था ना AI सेंसर्स वगैरह, दे वर यूजिंग समथिंग स्पेसिफिकली टारगेटेड डिलीवरी ऑफ जो भी इनपुट्स है ना, वाटर. अच्छा वो सॉइल हेल्थ कार्ड को बोलेंगे जैसे, शायद वो तो उसका तो नहीं होगा क्या डायरेक्टली? नहीं वो तो डिजिटल में नहीं है. राइट, डिजिटल में तो नहीं आएगा. आईकार का कोई ऐसा प्रोग्राम था ना जिसके थ्रू मोबाइल के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स बता सकते थे फार्मर्स. एक चैनल भी तो था वो, किसान चैनल. हाँ राइट. एक वो हो गया, प्लस दूसरा जो किसान जो ये होता है ना, कौन से हम लोगों ने पढ़े थे यार अभी, जो FPOs होते हैं वो नॉलेज जो करते हैं सर्कुलेट, तो वो डिजिटली जितना ज्यादा एम्पावर्ड होंगे, मोबाइल पे इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा, तो वो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचेगी इजीली. आई थिंक वो एप्स वगैरह कोड करने हेल्प करेगा शायद. राइट. वो भी बोल सकते हैं ना कि जो भी लैब बेस्ड नॉलेज है उसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए, उसको मतलब साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लैब टू लैंड. कृषि सेवा केंद्र के लिए. हाँ वही कृषि सेवा केंद्र. हाँ तो वो भी इसी में आ जाएगा ना, डिजिटल इंडिया में आ जाएगा वो भी. राइट. और एक वो भी है ना, वेदर इंफॉर्मेशन और जो मंडी की क्या रेट है, एक ऐसा ऐप भी था ना जहाँ पर किसान को उसके फोन पे ही पता चल जाएगा कि किस चीज का क्या रेट है. अच्छा ये जो फसल बीमा योजना में भी शायद होता है ना, किसान फसल बीमा, तो
क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें प्रॉपर फोटो अपलोड करते हैं। तो ई नाम ही तो था वो। करेक्ट, फार्मर्स के लिए इनकम को सेकंड पार्ट के लिए वी कैन राइट ना इनकम। इनकम वाले उसमें क्या है कि पूरा डिजिटलाइज कर दिया है, तो अब उसको करप्शन में जैसे होता था ना, पहले कोई इंश्योरेंस देखने आ रहा है तो वो देखता था कि फसल बर्बाद हुई कि नहीं बर्बाद हुई, और अगर बर्बाद भी हुई रहती थी तो पैसे ले लेता था उनसे करप्शन के लिए, तो तभी वो आगे अप्रूवल देगा। तो वो चीज अब एलिमिनेट हो जाएगी, मैंडेटरी उनको फोटो डालनी पड़ेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि केस जेन्युइन है कि नहीं है। एक ड्रोन एक से भी लैंड तो रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी टेस्ट कर रहे थे ना कोई प्रोग्राम में, ड्रोन से या उससे। ड्रोन से वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, फवारनी का बोलते हैं, हाँ फर्टिलाइजर, सीड वाला भी तो था पेस्टिसाइड ड्रोन के विडिसाइड। थ्रू। वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर तो बताया था ना, वो भी सही है ना, प्रिसीजन AI बेस जो होता है। वो है ना And I think लैंड उसके रिकॉर्ड, बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जिससे कि फिर जियो टैगिंग होकर के फिर लोन्स भी इजीली अप्रूव हो जाएगा। वो भी अपन काउंट कर सकते हैं डिजिटल इंडिया में ना। इनकम में तो हम एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड भी लिख सकते हैं ना, जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री है, इससे रिलेटेड भी वेटरनरी सर्विसेज बेटर हो जाएंगी अगर डिजिटली अगर लोग एम्पावर्ड होंगे तो। हाँ यस डेफिनेटली। आई थिंक उसके बाद जो तुमने स्टार्टिंग में बोला ना, पोर्टल, हाँ जो स्टार्टिंग में बोला ना ई-नाम वो एंड में ला सकते हैं मार्केटिंग के। राइट। चैलेंजेस बताओ। डिजिटल चैलेंजेस वही होंगे जो चैलेंजेस वही है जो डिजिटल इंडिया के हैं, वही चैलेंजेस होंगे इसमें। पेनिट्रेशन कम है रूरल एरियाज में, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ही बहुत होती है, तो चार्जिंग नहीं हो पाते हैं, मतलब वो जो एंड्रॉइड फोन होते हैं मतलब मेनली। और डिजिटल इलिटरेसी, अवेयरनेस कम है। वो रीजनल लैंग्वेज का भी इशू आता है ना। राइट। चारू VRC क्या है? I think एक स्कीम था ना PMG दिशा, आई थिंक they wanted one digitally literate person in every household, ऐसा कुछ था ना। सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके देन विल मूव ऑन ना। राइट। ओके, स्टोरी नहीं पढ़नी है क्या वैसे आज? हाँ आई टोल्ड मूव ऑन टू स्टोरी ओनली ना। ओके करो फिर शेयर। ठीक है, तो आज स्किप कर लेंगे स्टोरी। लगता है तुम सो गए। ओके